Good evening, everybody. President of the Goa NCP, Sri Jose Philip D'Souza, former Chief Minister, former MP, current MLA, and leader of the masses of Goa, Sri Churchill Alamau, President of the Mahila Wing Sandra Martins, of the Youth Satish Narayani, Senior Vice President and Spokesperson Avinash Bhosle, General Secretary of the NCP Goa, Ms. Nelly Rodrigues, Minority Chairman Nazir Khan, General Secretary Sanjay Barde, Legal Cell Chairman Suhas Valvokar, Student President Wilroy D'Souza, Digambar Shirodkar, Gabriel Fernandez, Pritam Naik, and the observer and my associate colleague looking after Goa, Shri Narendra Verma, members of the print and television media, and dear friends and supporters of the NCP, ladies and gentlemen. First and foremost, I welcome you all today to this wonderful gathering on the occasion of the inauguration of the NCP office in Goa. This program was to have been held somewhere in February, but unfortunately, as you all know, the COVID pandemic came all to us also in India, to Goa, and that is why we had to cancel the program in February. And now, on today's auspicious day, we have now again begun our new innings of rebuilding the NCP in Goa. My congratulations to all of you, to Jose Philip D'Souza, to Churchill Alamau, and to all the office bearers of the NCP and all of you supporters of the NCP. I thank you all, and also Diwali has just been over. I wish all of you a very happy Diwali and a happy New Year. I was listening to Churchill Alamau just now. ये बात सही है कि पिछले विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो एनसीपी, आपको मालूम है कि कांग्रेस के साथ उसके पहले अलायंस में हमेशा थी। एनसीपी के तीन मिनिस्टर थे दिगंबर कामत के गवर्नमेंट में। दिगंबर कामत की सरकार जब गिर रही थी, बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे थे, प्रफुल्ल पटेल गोवा आया और सारे एमएलए को लेकर मैं दिल्ली उनको प्राइवेट प्लेन में लेके गया और कांग्रेस की गवर्नमेंट, दिगंबर कामत की गवर्नमेंट को बचाने का काम ये हमने किया था। और इसीलिए किसी ने हमको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी के विचारधारा क्या है, हमारी सोच क्या है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और चर्चिल आलमाओं ने बोला सही बात है, मैं खुद और शरद पवार जी ने खुद कांग्रेस के लीडर से हमने बात किया। हमने कहा उनको कि आप एनसीपी को 7-8 सीट दीजिए जो ट्रेडिशनली हम लड़ते हैं, और वो जगह आप दीजिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और बाकी के सभी लोगों ने पूरा गोल करते हुए आखिरी दिन तक ये मामले को कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे याद है
दिल्ली के मेरे घर में विजय सरदेसाई भी आए, गोवा फॉरवर्ड के, मैं भी था, और कांग्रेस का और हमारी मीटिंग दोनों की अलग अलग हमारी उनकी होने वाली थी। 24 घंटा विजय सरदेसाई भी बैठे थे और मैं भी राह देख के बैठा था कि कांग्रेस के साथ बात हो, लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ बात नहीं किया। जो बात की गई थी अलायंस हमारे साथ नहीं किया। और चुनाव होने के बाद भी आफ्टर रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन गोवा, एनसीपी only got one MLA, that is Churchill Alamo. Vijay Sardesai, Goa Forward got 3 MLAs and Congress got 17 MLAs. 17 plus 3 plus 1 was 21. We gave offer to the Congress that we are willing to support you to form the government. Vijay Sardesai also was telling the Congress, we are willing to support. And please, friends from the media, don't forget, I remember गवर्नर का टाइम सुबह 11 बजे का था, फिर वो टाइम 1 बजे का हो गया, फिर 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, 4 बजे हुआ, और आखिरी में 5 बजे विजय सरदेसाई's letter of support went to the BJP and they were able to form the government with the other supporters. It is not Congress could have formed the government. I am witness to all these developments. If the Congress would have fought in alliance with NCP, we would have got majority only between Congress and NCP alone. I am very sure of that. But this is the way we were treated. Nobody should give us a lesson on secularism. Nobody should give us a lesson on how we treat our allies. मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुआ, आप सभी लोगों को मालूम। एनसीपी के नेता शरद पवार 80 साल की उम्र में पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने दौरा किया। कांग्रेस को हमने ज्यादा सीट दिया, वो डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी हमने दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि साथ में मिलकर लड़े। कांग्रेस एज यूजुअल अनरीजनेबल, फिर भी हमने एग्री किया। शरद पवार जी घूमे, आपको मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है, सारे प्रेस मीडिया को मालूम है। शरद पवार जी ने घूमे, लड़ाई ऐसी लड़ी तगड़ी कि एनसीपी के 54 आए और कांग्रेस हमसे ज्यादा जगह लड़के भी 44 जगह आई, मगर हम दोनों ने मिलकर शिवसेना को उनके साथ से अलग किया। शरद पवार जी की वजह से आज महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां पर बनी है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एनसीपी, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ शरद पवार जी। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग all of you and my all colleagues here, senior colleagues who are sitting on the dais, we have to work together, we have to work unitedly. हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। I will come every month to Goa. One senior minister from Maharashtra will come every month to Goa to see and support all the activities which you will be conducting here. गोवा का डेवलपमेंट करना ये बहुत जरूरी है। I am thankful to you, Churchill ji, for the speeches made in Parliament. I remember I was also MP, and I was also MP, and I am witness. I was in Lok Sabha with Churchill, Alamo, when Vajpayee government fell by 1 vote. I am aware. We were always talking together. We are friends for last more than 30 years. And that is why I am telling you, nobody need to give a character certificate to Churchill Alamo about his integrity, about his secularism, and about his love and respect for the people of Goa. मैंने खुद देखा है। और ये भी जो आपने बोला, what you have shown just now, what Congress leaders have said about double track railway line, and now what they are saying, two different things. वो बोलते हैं ना, हाथी का दांत एक दिखाने का, एक अलग खाने का अलग। They talk something there and they talk something different here. And that is why NCP will support the people of Goa. NCP will support the wishes of the people of Goa. हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष में, आपकी लड़ाई में,
एनसीपी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, ये हम आपको वचन देते हैं। You talked about airport, Charsil ji. I am telling you, I was civil aviation minister. I remember Jose Philip D'Souza, Churchill Alamao. You both met me because that time previous government of BJP in Goa and in Delhi had taken decision that we will make Mopa the airport and close down Daboli. That was decision taken, cabinet decision of government of India, government of Goa. And then I became civil aviation minister, UPA government. These people told me why we are closing Daboli. What will people of South Goa, why they have to go so far? Why can't we have more than one airport here? Why can't Daboli also be open? That is the time. And I remember Churchill Alamao ji, you and our Joseph Philip, we had the function for the Bhumi Pujan of the current airport which you are seeing. New building, Dabolim. That time in Dabolim ground, you both were there. And I just told the whole people of Goa that there will be no closure of Dabolim. We will make new airport in Mopa, but not closing Dabolim. That was the decision which was then taken by the Union Cabinet in Delhi also. We are with the people of Goa. We want Goa to develop. We want prosperity of Goa. Look at the situation today. मेरे मन में दुख होता है जब आज हम गोवा आते हैं। अभी हम मांडोवी नदी के बाजू से अभी इधर आ रहे थे, सारे शाम को जो क्रूजेस भर भर के लोगों के जाते थे, आज एक भी क्रूज उसका चालू नहीं है, सब बंद है। जब हम एयरपोर्ट पे उतरते थे, गोवा का एयरपोर्ट पूरा भरा हुआ होता था। आज एयरपोर्ट पे वैसी भीड़ आपको कहीं देखने नहीं मिलती। आज होटल्स जो है गोवा के, ये खाली है। मैं लास्ट मंथ आया था, जब हमारे आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हमारी पार्टी की हमने मीटिंग किया था। मैं जिस होटल में रुका था, वो होटल पूरा खाली था, कई होटल बंद थे। आज गोवा में अगर टूरिज्म नहीं होगा, गोवा में अगर बाहर से लोग आएंगे नहीं, विदेश से लोग नहीं आएंगे, भारत से लोग नहीं आएंगे, तो गोवा की इकोनॉमी का क्या होगा? इसका सोचो आप लोग। जो लोग बुजुर्ग हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जवान लोग हैं, उनके आगे की भविष्य की जो पीढ़ी है, गोवा फ्यूचर, ये टूरिज्म जब तक नहीं होगा तब तक गोवा का फ्यूचर नहीं होगा। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, गोवा में एक परंपरागत पहले आयरन ओर का धंधा होता था, वो पूरा चौपट हो गया। ट्रक्स खाली रहे, बार्जेस खाली हो गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? मगर यहां पर टूरिज्म की वजह से गोवा की इकोनॉमी थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, संभल गई। लेकिन आज पूरी इकोनॉमी गोवा की टूरिज्म नहीं होने से चौपट हो चुकी है। कोविड ने हमारे देश को तो नुकसान पहुंचाया ही है, लेकिन सबसे ज्यादा देश में नुकसान गोवा को पहुंचा है, बिकॉज दिस इज द मेन स्टे ऑफ गोवाज इकोनॉमी। आप सोचो, आपके कितने सारे लोगों के बच्चे, किसी का भाई, किसी की बहन, कोई टैक्सी चलाता है, कोई होटल में काम करता है, कोई एयरपोर्ट पे काम करता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई और कोई काम करता है टूरिज्म रिलेटेड। आज सारा काम चौपट हो चुका है और इसीलिए गोवा की इकोनॉमी बहुत वाइटल है, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो, अभी आपने आयरन ओर की बात कही, आपने कोल की बात कही। आई एग्री विथ यू, coal and iron ore movement from Goa, the way it is happening, people are opposing because Goa's environment is very important. If Goa's tourism is to survive, Goa's environment must also be surviving. गोवा का environment हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा, वरना गोवा में टूरिज्म नहीं बढ़ पाएगा। ये आपको, हमको, सबको मिलकर संभालना होगा। और इसीलिए आप अपोज करिए कोल का मूवमेंट, हम आपके साथ हैं, हम आपके संघर्ष में, हम आपके साथ खड़े हैं। आप कहीं भी जाइए,
मुझे बुलाइए, मैं सामने आके आपके साथ खड़ा हूं। मजे नदी का भी जो आपने विषय निकाला, वाई शुड गोवा's वाटर गो टू कर्नाटका? वाई गोवा डजंट नीड वाटर? गोवा also needs water. Goa has agriculture. You have to find solutions. You cannot just take unilateral decisions. You have to ask the people. You have to go with the will of the people. आज बोलते हैं ना, देश में सभी लोग बोलते हैं कि हम लोगों के साथ हैं। अरे पर लोगों के साथ हो तो फिर लोगों की आवाज की कौन सुनाई कर रहा है? ये नहीं अगर चलेगा, इस तरह से एनसीपी की ओर से हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि गोवा का विकास हो, गोवा आगे बढ़े, गोवा में बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, आईटी हो, गोवा में आगे टूरिज्म बढ़े। गोवा हैज टू बी द मॉडर्न सिटी, द मॉडर्न फेस ऑफ न्यू इंडिया। गोवा हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये हम चाहते हैं और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर एक नई शुरुआत करें। जो लोग सोचते हैं कि एनसीपी में क्या है, तो एनसीपी क्या है ये आगे का समय बताएगा। हम बताएंगे आपको। लोग विकल्प चाहते हैं, लोग बीजेपी को नहीं चाहते गोवा में, और कांग्रेस का भी विकल्प अकेला वो अगर सोचते होंगे तो वो नहीं बना पाएंगे। ये बात भी उतनी सच है। कांग्रेस के 17 एमएलए आए, आज 5 क्यों रह गए? 12 लोग कहां गए? गायब हो गए। क्योंकि लोगों को भी अपना भविष्य हर आदमी देखता है। तो मैं चाहता हूं हम किसी के हमने हमेशा कहा है, जैसे महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाई, हमको भी मौका था बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने का, मगर हमने नहीं बनाई। बहुत इजी ऑप्शन था हमारे लिए, हमको भी ऑफर था। आपने देखा था ना कि हमारी सरकार उनकी बन सकती थी, लेकिन हम लोगों ने उनको रोका। आज गोवा में भी अगर रोकने की किसी में ताकत है तो उसको एनसीपी के माध्यम से हमको बनाना पड़ेगा, और ये बीजेपी की सरकार यहां पर जो है इसको नीचे लाना पड़ेगा अगले चुनाव में। ये आपको और हमको मिलकर संकल्प करना है। और इसीलिए साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आई जस्ट क्लोज माय स्पीच बाय सेइंग that there is hope, there is a new beginning. As the world has seen after Corona, that there is hope. People are thinking now vaccine will come. 3 months, 4 months, a cure for COVID will come. We all will hope that a new beginning in the politics of Goa will come in the year 2021. And from there on, till the Vidhan Sabha elections, NCP will work shoulder to shoulder with all of you to ensure that a new secular, good government is established in Goa. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, प्रफुल्ल पटेल जी. सगळ्यांक मागता जोरान येवकार दिवचे, ताळे मारून प्रफुल्ल पटेल जी.